Good morning 10th class. In the last video we have discussed question number 1. Now let's see question number 2. Question number 2 is so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So we have discussed some examples regarding of this. I told you that always for applying Euclid lemma, division lemma, you have to assume that number in the form of that question in which he asks to you something. ठीक है? If it is asking you 6q plus 1, 6q plus 3, then you are to assume that b is equals to 6. Okay? Now let's see. Solution. Let a is any positive integer let a is any positive integer and b is 6. Apply Euclid division lemma. And this is a is equals to bq plus r, where r is less than equal to less than b and greater than equal to 0. r always vary करेगा 0 to b, where 0 is included and b is not included. Okay, so a is equals to bq plus r, where a is equals to v की वैल्यू क्या दी हुई है 6q plus r. अब r क्या हो सकता है, where r 6 से वैरी करेगा और 0 to 6 जाएगा. ओके, 0 to 6. रिमेंबर दैट दिस इज 6, दिस इज b, दिस इज b. ओके, ये ध्यान रखना. सो 6 0 से 6 तक वैरी करेगा, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r कैन बी 0, r कैन बी 1, r कैन बी 2, r कैन बी 3, r कैन बी 4, r कैन बी 5, r कैन बी 6 तो होगा ही नहीं. ओके, सो फॉर r इज इक्वल्स टू, if r is equals to 0 implies that a is equals to is what, 6q. If r is equals to 1 implies that a is equals to 6q plus 1. If r is equals to 2 implies that a is equals to 6q plus 2. If r is equals to 3 implies that a is equals to 6q plus 3. If r is equals to 4 implies that a is equals to 6q plus 4. r is equals to 5 then implies that a is equals to 6q plus 5. So we have some equations and the values of these after putting the value of r. Now let's see, if r is equals to 0, 6q, r is equals to 1, 6q plus 1, r is equals to 2, 6q plus 2, r is equals to 3, 6q plus 3, and r is equals to 5, 6q plus 5. Okay, let's see. We know that if any number is multiple of 2 and देखो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेकर के 3q प्लस 1. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेकर के 3q प्लस 2. अब आप मुझे बताओ, अगर कोई नंबर 2 से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा. सो 6q plus 2, 6q
प्लस 4 आर मल्टीपल ऑफ 2 या फिर डिविजिबल ऑफ 2, ठीक है, आर मल्टीपल ऑफ 2 या फिर क्या है ये डिविजिबल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 आर मल्टीपल ऑफ 2, hence these are even number. ओके, यहां राइट कर रहे हैं साइड में, बट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 are not divisible by 2, ऐसे भी राइट कर सकते हो, ओके, या मल्टीपल ऑफ 2 लिख लो, लैंग्वेज चेंज मत करो, मल्टीपल ऑफ 2, सो दीज आर ऑड नंबर. दैट्स इट, हैंस प्रूव. अच्छा, अगर किसी के मन में डाउट है ना तो वो q की वैल्यू को क्या कर सकता है, पुट कर सकता है. अगर मान लो मैंने q इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा और यहाँ ये 4 हो जाएगा, तो ये सभी क्या आ रहे हैं, इवन नंबर. अगर मैं q इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूँ तो ये 6q हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. 6, 8, 10 क्या है, इवन नंबर. अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 16. तो ये सब इवन नंबर है. जबकि यहाँ देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 1, ये 3 और ये 5 ऑड नंबर्स. अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 11. तो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं. तो ये इवन नंबर ऑलवेज प्रोवाइड करेगा और ये ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ऑड नंबर्स प्रोवाइड करेगा. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Let question number 3. Question number 3 is an army contingent actually of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, the two groups are to march in the same number of columns. What is maximum number of columns in which they can march? अच्छा, इसमें क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए. बाय विच नंबर, किस नंबर से होने चाहिए वो हमें बताना है. लेकिन ये तो सिंपल सा है कि हमने 6th क्लास में या 7th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार फिर हमें फिर से वही प्रोसेस यूज करना है. लो, अब हमें क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस यूज करना है. ओके, लेट्स सी.
members in army went. Maximum number of members and column is equals to SCF. 616 is greater than 32 by applying Euclid division lemma. Six 616 is equals to 32 multiplied with something and plus. Now 616 32. So this is one time, this is what here 9, and this is 2, this is 6. How many times? 8 times. It can't be divided completely. Okay. एक टाइम डिवाइड होगा. ओके. 6 and 225, 256. Subtract. This will get 0. This will get 40. ओके 9 टाइम ही डिवाइड हो रहा है ना, ये 9 टाइम डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 88. ओके, हाउ मच एट इज 8 is left at here. Okay, so how many times is 19 time 8 is remainder, and it will, let's see, in the second step 8 is greater than 0. Okay, 40 or 32 and 8. ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. where 32 is greater than 8. Okay, 32 is greater than 8, that means 32 will equal to 8 multiplied with 4 plus 0. 8 is where R is 0, so 8 is HCF of 8 is a CF of 616 and 32. So final line is what? What is the maximum number of columns in which they can march? 8 columns are maximum in which they can march. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ दिस. हमें ये यूज करना है. ठीक है. अच्छा, इसमें मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है. ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है या फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला यूज करना है. तो देखो, जहाँ यूज इसका करना है वहाँ पे लिखा आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा. अगर नहीं आता है तो हम सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं इसका, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज any positive integer is either of the form of 3m plus 1 or of the sum integers। ठीक है, let अब देखो ऑलवेज इसमें हिंट दिया हुआ है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसमें अज्यूम क्या करना है, हमें अज्यूम करना है 3q plus 1 3q plus 2 means actually there b is equals to 3 because here in this question terms are in the 3 के टर्म्स में दी हुई हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है हमसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हम अज्यूम करेंगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेट से लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equals to 3। apply Euclid division lemma। okay, let a is any positive integer, b is 3, you apply Euclid division lemma। तो यहाँ से मैं लेमा को इसी की साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन इज लेंथी। सो बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज 0 to b। ओके, आर वेरी फ्रॉम 0 to b। नाउ implies that a is equals to b की वैल्यू क्या है 3q plus r where r is 0 to 3। r की वैल्यू पुट कर दें if, अच्छा if मतलब सो r इक्वल टू 0 1 2 यहीं तक वेरी करेगा। अगर r की वैल्यू पुट करते हैं तो a क्या हो जाएगा 3q, a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 3q, r की वैल्यू 1 है तो 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 है तो 3q प्लस 2। अब उसने कहा इनका स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या 9q स्क्वायर। इसको मैं राइट क्या कर सकता हूँ यहाँ से 3q स्क्वायर। बताओ क्या इसे 3 के मल्टीपल में डिनोट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है ना, दैट कैन बी रिटन एज 3m। ठीक है, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, 3m और 3m प्लस 1 के टर्म में पूछा है ना। ओके, सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर विल इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q 9 हो जाएगा ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ये कहाँ से आया a प्लस b होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ से देखो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ, इसे राइट कर सकते हैं इस वाली टर्म में 3 कॉमन ले लोगे आप तो 3q स्क्वायर प्लस 3q तो 2q। देखो मैंने 3 कॉमन लिया है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1।
इसे मैं राइट कर सकता हूँ क्या, इसे यहीं, अच्छा यहाँ राइट कर देते हैं 3m+1। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, वेयर m = 3q² + 2q। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया कि 3m+1 की एक टर्म बना दी। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, मैंने नेक्स्ट वाले का स्क्वायर किया, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9q² + 3 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 12q प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 के टर्म में डिनोट करना है। 3q² + 4q + 4, इसी में क्या राइट कर सकता हूँ 3m + 4, वेयर m = 3q² + 4q। अब बताओ उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, 3m and m+1 फॉर द इंटीजर्स ऑफ m। इसे सिर्फ किस में डिनोट किया जा सकता है, 3m और 3m+1 में। अच्छा यहाँ पर तो 3m+4 आ गया, अगर 3m+4 आया है तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ। अच्छा एक और बात ध्यान रखो, इसे 3+1 भी तो राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये +1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 इसके अंदर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +1। बताओ कोई प्रॉब्लम? इस 4 को डिवाइड कर लिया 3+1 में, अगर 3+1 में डिवाइड करेंगे तो 3 अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 4q + 1 है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3q² 4q + 1, और ये आया कहाँ से, इस 4 को ब्रेक करने पर 3+1 में। तो हर जगह जो आंसर बन रहा है, जो आंसर आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है 3m+1 आ रहा है। क्या आ रहा है 3m+1। देखो यहाँ भी 3m+1 बन रहा है, यहाँ भी 3m+1 बन रहा है, और यहाँ पर 3m। क्या इसके फर्दर कोई वैल्यू जा पा रही है, नहीं जा पा रही। तो फाइनल जो ये स्क्वायर वाला आंसर है वो किन दो टर्म्स में आ गया, 3m और 3m+1 में। हैंस स्क्वायर ऑफ, ये क्वेश्चन से डिनोट करना है, ओके, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर square of any positive integer is in the form of (3m and 3m+1). ओके, पहले हमने क्वेश्चन राइट की, लेट द पॉजिटिव इंटीजर a एंड b = 3, देन अप्लाई किया a = 3q + r के टर्म में r = 0, 1 and 2, r = 0 देन 3q, 1 = 3q + 1 and 2 = 3q + 2। वेयर ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड में, तो a = हमें फाइंड होता है 3q², 3q² मीन्स 9q²। इसको मैं 3 के टर्म में ब्रेक करता हूँ, तो ये 3 × 3q² हो जाता है, वेयर m = 3q²। लेट्स से ये स्क्वायर = 3q + 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9q² 6q + 1 बाय द a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। हैंस इन द नेक्स्ट स्टेप 3q², देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बना 3q² + 2q + 1। तो ये 3q² + 2q को मैंने क्या राइट कर दिया, m के टर्म में। ऑलवेज हमें उस टर्म में लेके आना होता है आंसर, ठीक है, जिस टर्म में वो पूछ रहा है। तो 3m+1 ये हो जाएगा 3m, यहाँ से नेक्स्ट में 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो 9q² 12q एंड 4। इस 4 को ब्रेक कर लिया हमने 2 टर्म्स में, एक 3 और एक 1। तो यहाँ से जब 3 में ब्रेक किया तो यहाँ 3 आ गया अंदर और यहाँ 1 रह गया, तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा 3q² + 4q + 3।
ठीक है, तो ये बन गया 3m प्लस 1। अब मैंने देखा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1, यहाँ 3m, तो दो ही टर्म्स में आंसर आया 3m और 3m प्लस 1 में। यही उसने पूछा था, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Let's see. Let any is any positive integer where v is 3। अच्छा, 3 क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि 3 के क्यूब में 9 का टेबल आता है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इधर साइड में लिख देते हैं इसे। ओके, अब यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये तो सभी में सेम है। r की वैल्यू क्या हो गई, ये r वेरी करेगा 0 से b तक, 0 to b, r will vary from 0 to b। ओके, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, where r is less than 0, greater than equal to, greater than 0 and less than equal to 3। r is less than 3 and greater than equal to 0। now let's say what q। अब देखो यहाँ से हमें किस फॉर्मेट में डिनोट करना था, क्यूब के फॉर्मेट में डिनोट करना था। तो पहले r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 1 2। सो इफ r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2। r इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3q, इम्प्लाइज दैट a क्या आ जाएगा यहाँ से 3q प्लस 1 एंड a क्या आ जाएगा यहाँ से 3q प्लस 2। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? अब उसने कहा क्यूब, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा 3q, दैट मीन्स 27 क्यूब। इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 9 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 9 कॉमन ले लो यहाँ से, 3 क्यूब क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब। इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ 9m, वेयर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब। ओके, सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो इसका, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। देखो मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, अच्छा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये राइट कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई की जगह ये राइट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा ये 3q का क्यूब मीन्स 27 क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद 1।
3a, तो 3 इंटू 3q इंटू में क्या 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या बन गया 27q प्लस 1, इस 1 को पीछे लिख देंगे बाद में, है ना, लास्ट में। ये हो जाएगा क्या 27q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q और ये हो जाएगा 1। अब बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, उसके बाद ये वाली टर्म। अब मैं इसे यहाँ से अरेंज कर रहा हूँ। 27q, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया मैंने। क्या कॉमन ले लिया 9, क्योंकि 9 के टर्म में बनाना था ना इसे। 9 कॉमन, तो ये बन गया 3q प्लस ये बन गया क्या 3q स्क्वायर प्लस ये बन गया 3 कॉमन तो q, और कुछ कॉमन तो आया नहीं यहाँ से, तो 1। अब देखो यहाँ से मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, तो एक टर्म क्या बन गई यहाँ पर इसकी 9m प्लस 1, एक टर्म बन गई 9m। नेक्स्ट देखो थर्ड, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो मैं होल क्यूब डायरेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ इसका होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब 27q प्लस 3 a स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3q इंटू में 4 प्लस 8। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 3394 36q प्लस 8। 9 कॉमन लो यहाँ से, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3q क्यूब। 9 कॉमन लोगे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 6q स्क्वायर प्लस ये 4q प्लस 8। अच्छा, इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से देखो ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस टर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्यूब ऑफ any positive integer is of the form of 9m plus 1 and 9m plus 8. Okay, do you understand this what we have done? पहले हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की टर्म राइट की, b की जगह 3 राइट किया, r की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेंगे 0 to 3, r की वैल्यू पुट की तो इक्वेशंस क्या मिल गई हमें 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। क्यूब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब 27q और इससे बनेगा 9 हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होता है। 9 3q क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 9m वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। ए क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, दैट मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू, इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन गया 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर, 9 क्यूब एंड प्लस 1, 9 कॉमन ले लिया यहाँ से तो 3 क्यू क्यूब एंड 3 क्यू स्क्वायर एंड क्यू प्लस 1। सो यहाँ से ये m की वैल्यू क्या हो गई 3 क्यू क्यूब एंड 3 क्यू स्क्वायर एंड 3 क्यू सॉरी प्लस क्यू। सो m की एक टर्म क्या बन रही है 9m प्लस 1। फिर उसके बाद में ये क्या बन रहा है q की टर्म में, इसे सॉल्व किया, अगेन हमने ऑल क्यूब ओपन किया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और इसमें से कॉमन 9 आ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया 9m प्लस 8। तो हमें ये पता चलता है हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so remaining questions we will do in the next video, some this type of other questions also, and then we will go further on the LCM SCF by the process of prime factorization method. Okay, prime factorization से आपको बताना है। थैंक यू।